Welcome everyone. In this video, we are going to revise a few important literary devices. So first of all, it becomes important to know what actually literary devices or poetic devices are. So here we are. A figure of speech is a poetic device which consists in the use of words and phrases in such a manner as to make the meaning more pointed and clear and the language more graphic and vivid. फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो कि सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं जिससे कि उस सेंटेंस का मीनिंग या फिर उस फ्रेज का मीनिंग और भी ज़्यादा पॉइंटेड हो जाता है और क्लियर हो जाता है और जो लैंग्वेज हम जो पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होने के बाद वो बहुत ही ग्राफिक और विविड मीन्स कलरफुल हो जाती है, अच्छी हो जाती है. But it is a mistake to think of figures of speech as simply ornaments of language. They are part and parcel of human language in moments full of emotions. Figures of speech हमेशा लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए ही नहीं यूज़ होते हैं, बल्कि ये ऐसा है कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो डे टू डे लाइफ में भी हम यूज़ किया करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि we are using figures of speech here. So now we'll see the types of figures of speech which we are going to discuss. So first one will be simile, then metaphor, then personification, onomatopoeia, apostrophe, alliteration, repetition, assonance, refrain, imagery. Number 11, anaphora, then we have oxymoron, then antithesis, irony, pun, transferred epithet, metonymy and synecdoche. These are the figures of speech which we'll be revising in this video. हम इन सभी के बारे में जानेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से कोशिश करेंगे इन्हें अच्छे से समझने की. So now first of all we have metaphor. Let us see what it is. It directly refers to one thing by mentioning another. It may provide clarity or identify hidden similarities between two ideas. Metaphor हम use करते हैं when we are comparing two things. Okay, whenever there is comparison between two things, we can use metaphor there. But condition is that there should be some hidden similarity between those two things और लिविंग बींग्स. उन दोनों चीज़ों में या उन दोनों लिविंग बींग्स में कोई ना कोई हिडन सिमिलैरिटी होनी चाहिए. Let us see with the help of examples. He is a tiger, she is a fox. Now see, he here is compared to a tiger. Here this doesn't mean that the man is a tiger. Exactly वो tiger नहीं है, but he has some qualities of a tiger. Maybe वो टाइगर की तरह करेज अपने पास रखता हो या फिर वो टाइगर की ही तरह क्या हो, स्ट्रांग हो. Similarly, second sentence we have, she is a fox. So यहाँ पे that person is not a fox. उसमें कोई ना कोई क्वालिटी है जो फॉक्स में होती है. जैसे कि हम फॉक्स को क्या कंसिडर करते हैं, क्लेवर. सो मे बी शी इज़ ऑल्सो क्लेवर एज अ फॉक्स. तो यहाँ पे इस तरह से हम मेटाफर का यूज़ करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने में या किसी एक चीज़ को बताने के लिए दूसरी का यूज़ करने में. बट सिचुएशन ये है कि इन दोनों में कोई न कोई हिडन सिमिलैरिटी होनी चाहिए. नाउ विल सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाफर्स वी हैव. फर्स्ट इज सिमिली. एग्जाम्पल इज ही इज as idiot as an owl. Again he is compared here to an owl. Now next, antithesis. Better be the head of a dog than be the tail of a lion. Tail of a lion and head of a dog. These two things are compared here. These two ideas are compared here. Hyperbole. Ron dived like an eagle. So Ron, this person is compared to an eagle here. Metonymy. The crown decided to raise the taxes. Okay, the crown. Now see, crown here is compared to what? Crown here means what? The king actually, or the queen here actually. Fine. So here there is hidden similarity. What? Who wears the crown? King or queen?
Now we'll know in detail about simile. Simile here it is actually direct comparison between two things using words like or as. अगर हम words like और as का use करके direct comparison show करते हैं दो चीज़ों में, it means we are using simile there. For example, he fought like a tiger. He, अब इसका यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है टाइगर से, बट यू सी वॉट वर्ड लाइक इज यूज्ड हियर. प्रीवियस सेंटेंस में हमने क्या देखा था, ही वॉज अ टाइगर, ओके, या फिर ही इज अ टाइगर. तो यहाँ पे हमने लाइक वर्ड का यूज नहीं किया था, तो वो मेटाफर था. यहाँ पे आप देखेंगे लाइक वर्ड का यूज किया गया है, देन हियर इट इज सिमिली. सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव, शी इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स. So again in the previous sentence if we refer, so it was she is a fox. So वहाँ पे यहाँ पे she का comparison fox से है, but यहाँ पे as word का use भी किया गया है. तो ऐसे cases में क्या हो जाता है, simile हो जाता है जब comparison भी किया गया है दो चीज़ों का और word like या फिर as का use किया गया है. Next we have antithesis. Antithesis is actually टू ऑपोजिट आइडियाज इन अ सेंटेंस. जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो ऑपोजिट आइडियाज डिस्कस किए गए हों, ऑपोजिट आइडियाज की बात हो रही है यहाँ पे, ऑपोजिट वर्ड्स की बात नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एंटीथेसिस. फॉर एग्जाम्पल, बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सर्व इन हेवन. अभी रेन इन हेल ये एक आइडिया हो गया, सर्व इन हेवन ये दूसरा आइडिया होगा. दीज टू आर हेयर डिस्कस्ड इन द सेम सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में ये दोनों आइडियाज डिस्कस किए गए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, एंड दीज टू आर ऑपोजिट्स. कैसे ऑपोजिट हैं, यहाँ पे देखो हेल की बात हुई है और यहाँ पे किसकी बात हुई है, हेवन की बात हुई है. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल. Again, united we stand, one idea, divided we fall, another idea. Again you see what opposites we have, united and divided again. Fine. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फ्रेज में और इस फ्रेज में इन दोनों में ऑपोजिट आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं. एंटीथेसिस में ऐसा भी होता है कि हमने जो अभी कहा है प्रीवियसली उसी को हम निगेट कर दें, मीन्स उसी का हम ऑपोजिट बोल दें. जैसे कि इस सेंटेंस को अगर आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, यहाँ पे जो बात कही गई है उसी का उल्टा नेक्स्ट पार्ट में उसी सेंटेंस के कह दिया गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ब्यूटी एंड द बीस्ट. अब यहाँ पे देखिए इस फ्रेज में ब्यूटी एक आइडिया हो गया, बीस्ट दूसरा आइडिया हो गया. तो यहाँ पे क्या है, एंटीथेसिस. नाउ वी कम टू हाइपरबल. इट मीन्स एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, अनट्रस्टवर्दी. कोई भी स्टेटमेंट अगर एग्जैजरेट कर दिया गया है या बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कोई बात कह दी जा रही है और वो इस लेवल पे है कि वो अनट्रस्टवर्दी हो जाती है, जिस पे कि भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपरबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, द टी वॉज आइसी कोल्ड. तो अगर हम चाय की बात कर रहे हैं, अगर वो ठंडी भी हो गई तो हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट इट इज़ आइसी कोल्ड. सो नॉर्मल सिचुएशंस में ये पॉसिबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल कि आप एक्सट्रीम वेदर में हों. सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव शी स्लेप्ट फॉर एजेस. नोबडी कैन स्लीप फॉर एजेस. तो यहाँ पे तो भरोसे वाली बात ही नहीं हो रही है. तो again, in these two sentences, what we get figure of speech hyperbole. Fine. Now we go to the next one, that is metonymy. Metonymy is made of two terms, meto and nymy. Nymy is name and meto means substitution and nymy means name. Okay. Substitution of name. कोई भी नाम अगर substitute कर दिया जा रहा है तो वहाँ पे metonymy होगा figure of speech. For example, द ट्राइकलर वन द मैच. अब द ट्राइकलर, अब ट्राइकलर यहाँ जो फ्लैग है, एक फ्लैग है ये ट्राइकलर हमारा इंडिया का, तो फ्लैग ने तो मैच जीता नहीं. एक्चुअली किसने जीता, टीम इंडिया ने जीता ना, इंडियन टीम ने मैच जीता. तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंडियन टीम का नाम सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसे ट्राइकलर बोल दिया गया. तो यहाँ पे मेटोनिमी हो गया. सिमिलरली द स्कूल डिक्लेयर्ड अ डे ऑफ. अब ऑब्वियसली स्कूल ने एज एन इंस्टीट्यूशन उसने तो डिक्लेयर नहीं किया, किसी अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया, मैनेजमेंट ने डिक्लेयर किया या फिर स्कूल के प्रिंसिपल ने डिक्लेयर किया. फाइन.
तो यहाँ पे भी क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम हो गया, तो यहाँ पे मेटोनिमी। नेक्स्ट वी हैव पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, पर्सन प्लस फिक्शन। पर्सन मीन्स पर्सन एंड फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन। तो जब कभी भी ह्यूमन एक्शन इज गिवन टू नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे सिचुएशंस में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, कि लाइटनिंग डांस कर रही थी अक्रॉस द स्काई। फाइन, तो यहाँ पे लाइटनिंग को ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया है, क्यों? क्योंकि डांस क्या है, एक ह्यूमन क्वालिटी है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट वन इज रीता हर्ड द लास्ट पीस ऑफ पाई कॉलिंग हर। अब ये जो पाई है ये तो इंसान है नहीं, तो ये कैसे रीता को बुला सकती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, फिगर ऑफ स्पीच। नाउ कम्स अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी इज एक्चुअली एड्रेसिंग समवन हु इज नॉट प्रेजेंट और इज डेड और एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी एब्सेंट चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, किसी भी डेड इंसान को एड्रेस कर रहे हैं या किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, देन कम स्वीट डेथ एंड रिड मी ऑफ दिस ग्रीफ। अब देखिए यहाँ पे देन कम, कोई यहाँ पे स्वीट डेथ को कॉल कर रहा है, डेथ को कोई बुला रहा है, एड्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। अब अर्थ यहाँ पे अगेन ह्यूमन तो है नहीं, ओके, सो अर्थ को कोई कह रहा है पार्डन मी, अर्थ से कोई यहाँ पे माफ़ी मांग रहा है, उसे एड्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे भी फिगर ऑफ स्पीच क्या हो गया, अपॉस्ट्रोफी। नाउ वी हैव ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड, तो ट्रांसफर्ड हो गया। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, बेसिकली फीलिंग से रिलेट यहाँ पे करना है। सो ये क्या होता है, एन एडवर्ब और एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ नाउन टू विच इट बिलोंग्स to a noun with which it fits only grammatically but not logically or practically. So transferred epithet से हम मतलब क्या लगा सकते हैं कि कोई भी adverb या adjective एक noun से जिसको कि वो belong करता है उससे शिफ्ट कर दिया जाता है, उससे हटा दिया जाता है और किसी दूसरे noun के पास सेट कर दिया जाता है जिस पे कि वो बस ग्रामेटिकली ही सूट करता है, लॉजिकली या प्रैक्टिकली सूट नहीं करता है। आई रिपीट, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पे कि एक क्वालिटी जो कि किसी नाउन ए पे सूट करती है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसी नाउन बी पे जहाँ की वो क्वालिटी सूट नहीं करती है, बस वो ग्रामेटिकली ही वहाँ पे सेट हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशंस में होगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ स्लीपलेस नाइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ट्रांसफ़र हुई है क्वालिटी एक नाउन से दूसरे नाउन पे। अब जैसे स्लीपलेस यहाँ पे कौन था, शी, वो थी यहाँ पे स्लीपलेस, तो ये जो क्वालिटी है ये इसको डिनोट करनी चाहिए, शी को, बट एक्चुअली हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि स्लीपलेस कौन से नाउन को डिनोट कर रहा है, नाइट को। अब नाइट तो स्लीपलेस हो नहीं सकती, ये क्वालिटी नाइट के साथ सूट नहीं करती है, बट यहाँ पे ग्रामेटिकली ये दोनों करेक्ट हैं। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज अ वंडरफुल डे टुडे। अब देखिए यहाँ पे फिर से, अब वंडरफुल डे यहाँ पे कैसे हो गया, ओके, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल, डे तो वंडरफुल होता नहीं है, ओके, हमारी फीलिंग वंडरफुल होती है, हम उस दिन वंडरफुल फील कर रहे होते हैं। तो जो क्वालिटी हमारे वंडरफुल फील करने से डे को ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो यहाँ पे क्या काम कर रही है, ट्रांसफर्ड एपिथेट का काम कर रही है। लेट अस हैव 2 more examples to understand transferred epithet better. Next we have, this is going to be a tiring week. Obviously यहाँ पे week जो है, जो हफ्ता है, वो तो टायरिंग हो नहीं सकता है। टायरिंग कौन होगा, लोग होंगे, people होंगे। तो again this quality of being tired is taken from people, okay, लोगों से ले ली गई है इस क्वालिटी को, and it is transferred to the week.
ओके, हफ्ते को ट्रांसफ़र कर दी गई है, जहाँ पे ये कि लॉजिकली नहीं सही है, लॉजिकली दिस इज नॉट राइट बट ग्रामेटिकली इट इज़ राइट। ओके, तो यहाँ भी क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डेज वर बोरिंग एंड नाइट्स वर रेस्टलेस। अब फिर से वही चीज़ आती है, डेज वर बोरिंग। डेज तो बोरिंग हो नहीं सकते हैं, बोर तो हम फील कर रहे होते हैं। तो हमारी जो बोरिंग फीलिंग है, हमारी जो फील करने की या जो हमारी क्वालिटी है बोर होने की, वो ट्रांसफ़र किसको कर दी गई, यहाँ डे को, जो कि यहाँ लॉजिकली सही नहीं है बट ग्रामेटिकली सही है। एंड नाइट्स वर रेस्टलेस। अब अगेन रेस्टलेस, नाइट्स तो होती नहीं है, लोग रेस्टलेस होते हैं। अगेन सेम थिंग हैज़ बीन डन हियर, सो हियर ऑल्सो वी गेट फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ ऑनोमेटोपिया, इट इज़ ईजिली वी कैन अंडरस्टैंड इट। ये क्या है, सब्सटीट्यूशन ऑफ साउंड है। जहाँ कहीं भी साउंड वर्ड्स यूज़ होते हैं तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमेटोपिया यूज़ हुआ है। इट सजेस्ट द सेंस ऑफ साउंड। फॉर एग्जाम्पल, द डोर शट विद अ बैंग। बैंग क्या है, एक साउंड को बताता है, तो ये हो गया ऑनोमेटोपिया। द मशीन फेल विद अ लाउड थड। थड ये आवाज़ भी साउंड को बताती है, तो ऑनोमेटोपिया हो गई। इसके अलावा लाइक हम मर्मरिंग ऑफ बीज ये ले सकते हैं, या फिर एक होता है क्रैकलिंग, ओके, ये हो सकता है। ये सभी जो है किसकी कैटेगरी में आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमेटोपिया की कैटेगरी में आते हैं। नाउ कम्स ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन इज बेसिकली टू ऑपोजिट वर्ड्स इन अ सेंटेंस। जब दो ऑपोजिट वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं, वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑक्सीमोरॉन। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज एन ओपन सीक्रेट फॉर ऑल। अब यहाँ पे देखिए, ओपन एक, सीक्रेट दो, ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। फाइन। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव, ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वीकनेस ऑफ द टीम। स्ट्रॉन्गेस्ट वीकनेस, अगेन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीमोरॉन आता है। बट एक चीज़ यहाँ पे कंसीडर करने की होगी, ध्यान देने की होगी, दैट दीज टू ऑपोजिट वर्ड्स आर सपोज टू बी केप्ट in the sentence side by side. Okay, here also you can see side by side these two words are kept, then only oxymoron will be there. Now comes pun. One word with two meanings. If one word is there and it has different meanings, then what will have, pun. For example, the happiness of the life depends on the liver. अब देखो यहाँ पे, द हैप्पीनेस ऑफ द लाइफ डिपेंड्स ऑन द लिवर। लिवर यहाँ पे दो मतलब हैं। एक लिवर तो हो गया, लिवर की अगर जो हमारा बॉडी पार्ट है अगर वो हेल्दी है, ओके, तो वो सही है, तो हमारी लाइफ कैसी रहेगी, हैप्पी रहेगी। और दूसरा लिवर यहाँ क्या है, पर्सन है। लिवर मीन्स रहने वाला या जीने वाले पे। हैप्पीनेस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज़ लिविंग दैट लाइफ। ओके, तो यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या आएगा, पन आएगा, फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वन, दिस टेररिस्ट लाइज इन द जेल। अब यहाँ पे क्या है सिचुएशन, लाइज। अब ये जो वर्ड है लाइज, इसके भी दो मतलब हैं। एक है लेट जाना और दूसरा है झूठ बोलना, टू टेल अ लाई। तो ये जो टेररिस्ट है, यहाँ पे दो मीनिंग निकल के आ रही हैं। वो लेट जाता है जेल में या लेटा रहता है, और दूसरा क्या है, झूठ बोलता है। फाइन, तो हियर ऑल्सो व्हाट वी हैव, पन। नेक्स्ट वी हैव आयरनी। आयरनी इज एक्चुअली नेगेटिव मीनिंग विद पॉजिटिव एटीट्यूड। हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग प्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आयरनी हो जाएगा। लाइक व्हेनेवर अ पॉजिटिव सेंटेंस गिव्स नेगेटिव मीनिंग। अब हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एन इंटेलिजेंट पार्टनर टू देम टिल लास्ट ईयर। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव मीनिंग क्या आ रही है कि बस लास्ट ईयर तक ही मैं उनका पार्टनर था, अब मैं नहीं हूँ। तो ये इस पर्सन ने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कहा है। सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव, शी इज सो वाइज दैट द विजडम हैज डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ। डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा है कि शी इज नॉट वाइज, ओके, इनडायरेक्टली यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके। पॉजिटिव सेंटेंस है बट इट इज गिविंग नेगेटिव मीनिंग, सो हियर ऑल्सो वी हैव आयरनी। नाउ एलिटरेशन, द ईजियर वन एंड द मोस्ट कॉमन वन। Repetition of stressed initial consonant sounds next to each other or nearby. जब कभी भी आप पाएं कि consonant sounds are repeated in lines, either they are next to each other
or nearby. In such situations, we have figure of speech alliteration. For example, can you keep the cat from clawing the couch? It's creating chaos. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं can, see, keep, के, then again see, फिर अगेन देन सी अगेन एंड देन सी अगेन. यहाँ पे लेटर से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे साउंड से मतलब होता है. जैसे क, कैन ने भी यहाँ क का साउंड प्रोड्यूस किया और कीप ने भी यहाँ पे क का साउंड प्रोड्यूस किया, इसलिए हम इसे भी ले रहे हैं. तो यहाँ पे सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हुए हैं. यहाँ पे क्या होगा? फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन. सेकेंड एग्जाम्पल, किम्स किड केप्ट किकिंग लाइक क्रेजी. अब फिर से यहाँ पे के एंड सी. यहाँ पे जो सी है ये भी क का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फिगर ऑफ स्पीच एलिटरेशन. नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट्स. अब हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट्स क्या है. रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स. प्रीवियस वाले में भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे थे और कॉन्सोनेंट्स में भी कॉन्सोनेंट साउंड्स ही रिपीट होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है. अब वो क्या है? Unlike alliteration, the repeated sounds can be found anywhere in the word. Alliteration में क्या था? इनिशियल जो लेटर था वर्ड्स का वो रिपीट हो रहा था, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है? कहीं भी रिपीट हो सकता है. जैसे आर यू रेडी टू रीड दिस पेपर. अब यहाँ पे हमें कॉन्सोनेंट ढूंढ रहा है और वो कहाँ रिपीट हो रहा है. देखो, आर, देन आर, देन आर, देन आर. तो यहाँ पे जो ये आर रिपीट हो रहा है ये कई जगह पे रिपीट हो रहा है. ओके, कहीं पे इनिशियल है, कहीं पे मिडिल है, कहीं पे एंड में है. तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव सजेस्ट मी सम ऑसम रेसिपीज. नाउ सी, सजेस्ट मी सम ऑसम रेसिपीज. एस, then here also and here also. Okay, various places. So here we have in such situations consonants. Next, assonance. Assonance is repetition of vowel sounds. अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कॉन्सोनेंट्स और एजोनेंस को, कि कॉन्सोनेंट्स जो है वो सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो वो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होंगे वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा. और एजोनेंस ए क्या है? वॉवेल है, तो जब वॉवेल साउंड्स रिपीट होंगे तो वो एजोनेंस हो जाएगा. इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर. जब कभी भी वॉवेल साउंड्स क्लोज वर्ड्स में रिपीट होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? एसोनेंस. फॉर एग्जाम्पल, वी डिसाइडेड टू बेक अ केक. अब बेक अ केक आप देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ, क्या है? बेक अ केक. फाइन. तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड, सेम साउंड, अ को तो नहीं ले सकते हम, बेक और केक इन दोनों को ले सकते हैं, तो यहाँ पे एजोनेंस हो गया. सेकेंड वन इज लेट अस बाय दैट स्मॉल बॉल. अब यहाँ भी रिपीट हो रहा है, सेम एजोनेंस. ओके, वॉवेल साउंड, तो यहाँ पे क्या हो गया? एजोनेंस हो गया. नेक्स्ट इज रेपिटिशन. अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड 2 or more टाइम्स. जब कभी भी कोई वर्ड या फ्रेज रिपीट होता है 2 या 2 से अधिक बार, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? फिगर ऑफ स्पीच रेपिटिशन. फॉर एग्जाम्पल, रेन गो अवे. तो रेन 2 times, सो हियर वी हैव रेपिटिशन. Second one we have all for one and one for all. So one and one used here 2 times, so it is a repetition here. Now refrain. Refrain actually is a line or group of lines if regularly repeated. अगर कोई भी लाइन या कोई ग्रुप ऑफ लाइंस जो हैं वो रेगुलरली रिपीट हो रही हैं तो वो रिफ्रेन होगा. बेसिकली ये पोएम्स में होता है. ओके, लाइंस जब रिपीट हो रही होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, God will surely show me the way when distressing pain drag me down and I have nothing to say. I simply cling to this song and pray. God will surely show me the way when there seems no way. अब यहाँ पे क्या है? ये वाली लाइन देखिए यहाँ पे रिपीट हुई है. फाइन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिफ्रेन हो जाएगा. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? रिफ्रेन. Now anaphora. Anaphora is repetition of words at the beginning of successive clauses, phrases और sentences. अगर कोई एक वर्ड है जो रिपीट हो रहा है बिगिनिंग में ही किसी भी सक्सेसिव क्लॉज में, फ्रेज में या सेंटेंस में, तो वहाँ एनाफोरा हो जाएगा. जैसे कि ये जो एक्सर्प्ट है इसमें हम देखते हैं, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. तो यहाँ पे एंड वर्ड जो है बिगिनिंग में यहाँ पे रिपीट हो रहा है,
तो फिगर ऑफ स्पीच वी हैव हियर इज एनाफोरा। ओके, तो याद रखिए एनाफोरा तब होता है जब क्लॉजेस, फ्रेजेस या सेंटेंसेस जो सक्सेसिव होते हैं उनके जो पहला वर्ड होता है वो रिपीट हो रहा होता है। एनजैबमेंट, एनजैबमेंट इज कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज अक्रॉस अ लाइन ब्रेक। मीन्स कि फर्स्ट लाइन खत्म नहीं हुई है और सेकेंड लाइन कंटिन्यू हो गई है। मीन्स जो सेकेंड लाइन है वो भी फर्स्ट का ही पार्ट है। कोई पंक्चुएशन मार्क ना यूज़ करते हुए अगर हम सेकेंड लाइन पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ एनजैबमेंट होता है। और ये भी बेसिकली पोइट्री में ही आता है ज़्यादातर। ओके, पोइम्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही शैल डाई टेक हिम एंड कट हिम आउट इन लिटिल स्टार्स एंड ही विल मेक द फेस ऑफ हेवन सो फाइन that all the world will be in love with night and pay no worship to the garnish sun। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थर्ड लाइन heaven so fine, यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं हुआ है और हमने सेकेंड लाइन में कंटिन्यू कर दिया है। सिमिलरली no punctuation mark is used here in this line also, number 4, and the last line has started. So in such cases figure of speech enjambment is found. Next, imagery. Imagery is basically creating images in the mind of the reader. जो रीडर है, जो लाइन्स को पढ़ रहा है, पोएम को पढ़ रहा है, उसके माइंड में अगर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके इमेजेस बनने लगती हैं तो देयर वी हैव फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल, द नाइट वॉज ब्लैक एज एवर बट ब्राइट स्टार्स लिट अप द स्काई इन ब्यूटिफुल एंड वेरीड कॉन्स्टलेशंस which were sprinkled across the astronomical landscape। अब ये हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा घूमने लगता है ब्लैक नाइट, देन ब्राइट स्टार्स, देन लिट अप स्काई एंड ब्यूटिफुल वेरीड कॉन्स्टलेशन आ जाता है, फिर स्टार्स आ जाते हैं स्काई में। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, इमेजरी। अब नाउ टाइप्स ऑफ इमेजरी वी हैव मेटाफर, ऑनोमेटोपिया, पर्सोनिफिकेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम देखें। मेटाफर, हर स्माइलिंग फेस इज़ द सन। अब स्माइलिंग फेस यहाँ पे है, अब सन, तो हम यहाँ इमेजिन करने लग सकते हैं कि स्माइलिंग फेस सन की हम यहाँ इमेजिन कर सकते हैं, तो इमेजरी हो गया। ऑनोमेटोपिया, द फायर क्रैकल्ड एंड पॉप्ड, तो फायर की क्रैकलिंग और पॉपिंग को हम इमेजिन कर सकते हैं, तो वहाँ भी क्या हो जाएगा, इमेजरी हो जाएगा। Now next type of imagery is personification. The wind whistled and hissed through the stormy night. यहाँ भी हम इमेजिन करने लग सकते हैं, तो ये भी क्या है, अ टाइप ऑफ इमेजरी है। तो यहाँ पे हम ये पा रहे हैं कि जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसमें कई ऐसे हैं जो ओवरलैप करते हैं, जो इनका टाइप होता है उसके हिसाब से ये एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। अब हम आते हैं साइनेक्डकी पे। तो ये क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। किसी भी चीज़ का पार्ट, टाइनी पार्ट, अगर उस पूरी की पूरी चीज़ को रेफर करने लगे तो ऐसे में फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, साइनेक्डकी। कि किसी भी पार्ट या कोई भी छोटा पार्ट इस पर्टिकुलर चीज़ का अगर उस पूरे के पूरे उस चीज़ को ही रेफर करने लगे तो ये फिगर ऑफ स्पीच होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वॉज द हेड काउंट। सो हेड का मतलब यहाँ पे खाली हेड से नहीं है, हेड मीन्स द होल बॉडी ऑफ द पर्सन। ओके, तो हेड काउंट मीन्स नंबर ऑफ पीपल। इंग्लैंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। सो इंग्लैंड हियर doesn't mean England here is what? England actually here mean the team England. ओके, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पार्ट ने होल को सिग्निफाई किया, मतलब पूरे के पूरे पर्सन को हेड ने सिग्निफाई किया। यहाँ पे इंग्लैंड मीन्स होल ने पार्ट को सिग्निफाई किया, किसको, टीम को, जो कि इंग्लैंड का ही पार्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइस व्हील्स। अब व्हील्स ये क्या है, पार्ट किसको सिग्निफाई कर रहा है, होल को। होल कौन है यहाँ पे, कार। ओके, तो ऐसे सिचुएशंस में फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, साइनेक्डकी होता है। फिर से रिपीट कर दूं, अगर पार्ट होल को सिग्निफाई करे या होल जो है पार्ट को सिग्निफाई करे, ऐसी सिचुएशंस में फिगर ऑफ स्पीच साइनेक्डकी होता है। और हमने एग्जांपल्स देखे, जैसे कि यहाँ पे हेड काउंट, सो हेड यहाँ पे पूरे के पूरे पर्सन को बता रहा था। सिमिलरली इंग्लैंड जो कि होल है, ये पार्ट को बता रहा था, टीम इंग्लैंड को बता रहा था। एंड द लास्ट वन व्हील्स, ये व्हील को नहीं बता रहा था, ये पूरे के पूरे कार को सिग्निफाई कर रहा था। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। Thank you everybody for watching.